السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی چینل. اس کی ٹانگ پہ آپ نے ہاتھ پھیر دیا، جو معذور تھی، ٹوٹی ہوئی، نکلیا ہوا گھٹنا تھا، فرمایا ٹھیک ہو گیا. حضرت علی ایک سفر میں، تجارت کے سفر میں تشریف لے گئے. سفر تجارت میں آپ تشریف لے گئے. جب وہاں آپ تشریف لے گئے تو دیکھا ایک شخص ہے، جھونپڑی، اس میں سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی بندہ درد سے کرہاتا ہے، غم سے کرہاتا ہے، اس میں سے کرہانے کی آواز آ رہی. تو بہت پریشان اور حیران ہوا کہ کرہانے کی آواز آ رہی کیا ہے. تو فرمایا کہ وہ آپ اندر تشریف لے گئے. تو صاحب خانہ نے اندر سے آواز دی، جو بھی صاحب آ رہے ہیں اجازت سے آئیں. سمجھ گئے اندر مستورات ہیں، باپردہ خواتین ہیں. وہ صاحب باہر تشریف لے آئے. تو پوچھا کیا ہوا، کرہانے کی آواز کیا ہے؟ کہا میری بیٹی ہے، میری بیٹی ہے، جنگل میں لکڑیاں لینے گئی، جنگل میں لکڑیاں لینے گئی، اس کے اوپر ایک درخت گر گیا کاٹتے کاٹتے، اور اس کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اب یہ بستر پہ پڑی ہے، جس کو ہم لفظ کہتے ہیں کہ اس کا نچلا حصہ پیرالائز ہو گیا، اس کا نچلا دھڑ ختم ہو گیا، اس کو پیشاب اجابت کا کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہے کیسے ہے. اب یہ بیچاری تکلیفوں اور دکھوں میں اور مسائل اور مشکلات. تو آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک عمل کرتا ہوں، تو ایسا کر صرف اس کا کپڑا لے آ. آپ نے اس کے کپڑے کو سامنے رکھا، اس کو کہا اس کو پکڑ، اور اس کی طرف یوں انگلی کی، اور یہ دعا جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، بس یہ دعا پڑھی، اور صرف چند بار ہی پڑھتی، اندر آوازیں خاموش ہو گئیں، چپ ہو گئی. آپ نے فرمایا پوچھو جا کے. آپ وہ بندہ اندر گیا تو واپس آیا، کہا بیٹی کو نیند آ گئی ہے، آج کئی ہفتے ہو گئے ہیں سو نہیں سکی، در سے کرہا رہی تھی، اس کو نیند آ گئی ہے. آپ فرمانے لگے میں سفر میں جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا نا پھر پوچھوں گا، اگر کوئی تکلیف ہوئی تو پھر دم کروں گا، پھر دعا کروں گا، اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. آپ چلے گئے، آگے تشریف لے گئے تو آپ کے ہم سفر تھے، ان کی سواریاں تھیں. ان میں سے ایک گھوڑا تھا، جس گھوڑے کو ٹھوکر لگی، چوٹ لگی، اس کے اگلے پاؤں کی ہڈی، گھٹنا باہر نکل گیا، گھٹنا باہر نکل گیا. وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا، اس کا گھوڑا چل نہیں سکتا تھا. اس نے آ کے علی کرم اللہ درخواست کی کہ آقا اس کے لیے کچھ فرما دیں. فرمایا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور آپ نے دعا پڑھنا شروع کر دی، یہی دعا جو ابھی پڑھنا شروع کر دی. اور فرمایا یہ اس کے ہاتھ پہ، اس کی ٹانگ پہ آپ نے ہاتھ پھیر دیا، جو معذور تھی، ٹوٹی ہوئی، نکلیا ہوا گھٹنا تھا. فرمایا ٹھیک ہو گیا. اور قافلے والوں نے دیکھا وہ گھوڑا سب سے آگے تھا، سب سے سبک رفتار تھا، اور سب سے لاجواب تھا. آگے ایک جگہ تشریف لے گئے تو قافلے کو پیاس لگی، پانی کی ضرورت تھی. کنواں دیکھا تو کنواں خشک تھا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ دعا پڑھی، اور دعا کو پڑھ کے اپنا لعاب کنویں میں ڈال دیا. فرمایا کنویں میں پانی کا ایک جوش اٹھا، اور پانی اٹھا اور منڈیر سے باہر نکلا. لوگ پینے لگے تو آپ نے روک دیا. فرمایا مت پیو، کنویں کا جو کھڑا کالا پانی ہے وہ نکل جائے، اور اس کے اندر جو تنکے خاک ہیں، مٹی ہے، وہ نکل جائے. اور پھر شفاف پانی جب نکلا، فرمایا یہ پانی پیو، مشکیزیں بھرو، سواریوں کو پلاؤ. قافلہ چلتا رہا. آگے تشریف لے گئے، آگے دیکھا تو کھانا ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا. اتنا کھانا تھا کہ اب کھا لیں، آئندہ کیسے کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو کھانا ہے لے آؤ. آپ نے کھانے کو رکھا، اوپر کپڑا ڈال دیا، اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی جو ابھی ہم بیٹھ کے پڑھیں گے. خوش قسمت ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے موتی لاتا ہوں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے، سارا دن میرا کام ہی یہی ہے، سارا دن میرا شعبہ یہی. میں اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اور کپڑا ڈال کے فرمایا دعا فرمائی، یہ عمل فرمایا، یہ دعا پڑھی، اور اس کے بعد فرمایا دیکھو کھا لیا. اور فرمایا ہمارا 17 دن کا سفر تھا، اس 17 دن میں ہم نے کھایا، لوگوں کو کھلایا، جہاں لوگ آتے تھے ان کو بٹھاتے تھے. دسترخوان ہمارا تھا چند افراد کا، پھر سینکڑوں لوگوں نے کھایا.
17 दिन के सफर में थोड़ी सी कमी भी ना हुई। जब घर लौटे तो वही का वही हमारा खजाना, खाना, वही सारा तोशा मौजूद था। आगे तशरीफ ले गए तो एक तिजारत में एक देखा तो एक बंदा है, ठीकरियों पे ठीकरियां मार रहा है, ठीकरियों पे पत्थर मार रहा है, ठीकरियों पे ठीकरियां, पत्थर पे पत्थर। आप उसकी तरफ तशरीफ ले गए, आपने उसको जाके देखा, लगता है कि तू पुराना जुआरी है। उसने कहा जुआ खेलता था, सब कुछ हार बैठा हूं, हर चीज जिंदगी खत्म हो गई है। अपनी आदत को पूरा करने के लिए पहले ताश के पत्ते पे पत्ता मारता था, अब ठीकरे पे ठीकरा, पत्थर पे पत्थर मार रहा हूं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने फरमाया अच्छा ऐसा कर तौबा की नियत कर ले, अल्लाह से तौबा कर ले, और फिर मैं तेरे लिए दुआ भी करता हूं, अमल भी करता हूं। तो ऐसा कर, पत्थर पे पत्थर मार, तेरा हर पत्थर सोने का बनता जाएगा। आप बैठ गए, उसने वैसे ही पत्थर पे पत्थर मारा, और जैसे बेचारा बेबसी की हालत में पहले मार रहा था, आपने दुआ करनी शुरू कर दी, ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, और दुआ पढ़ते पढ़ते देखा तो लोगों ने पत्थरों की शक्लें बदलना शुरू हो गई, और जो पत्थर भी उसके हाथ में आया था, उसके हाथ में आया था, वो चंद पत्थर थे, पत्थर पे पत्थर मारे, वो सारे पत्थर सोने के बन गए। आपने सारा सोना उसको दिया, चल पड़े, और वो पल भर में गनी बन गया, और वो पल भर में मालदार बन गया, और वो पल भर में शहनशाह बन गया। आप सफर में तशरीफ ले जा रहे हैं, सफर में आगे जाते जाते देखा कि एक शख्स है, उसके साथ एक बच्चा है, एक बूढ़ी औरत है, एक बूढ़ा गधा है, और वो सारे पैदल चल रहे हैं, गधे को सवारी को साथ लिए हुए। तो आपने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा एक सांप है जो इस गधे पे मुसल्लत है, उस सामने बैठा है, वो नीचे नहीं उतर रहा, हमने मारने की कोशिश की है, उसकी फुंकार से असा जल जाता है, और जला हुआ असा दिखाया, डंडा जला हुआ दिखाया कि एक फुंकार से डंडा जल जाता है, वो मुसल्लत है गधे पे, हम पैदल चल रहे हैं, मंजिल पे है, सांप मुसल्लत है, इसका कोई हल नहीं। आपने फरमाया इस गधे को इस झाड़ी से, इस दरख्त से बांध दो, और बांध के आप किबला रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, और फरमाया फिर दूसरे रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, और तीसरे रुख हुए, और दुआ पढ़ने के बाद आपने उस सांप पे फूंक मारा, सांप चींटी बन के छलांग लगाई और गायब हो गया। तो उन्होंने पूछा आका ये क्या था? फरमाया ये तुम्हारे ऊपर एक दुश्मन जिन मुसल्लत था, जो के तुम्हारी जानों और इज्जतों का लुटेरा था, मैंने उसको फना कर दिया। इस दुआ का आखिरी वाकया जो उस काफले में हुआ वो भी सुन ले, फिर हम बैठ के इस दुआ को पढ़ते हैं। क्या ख्याल, कितना जबरदस्त अमल है। आप फरमाए जिस कयाम तक पहुंचे, जहां आपके काफले की आखिरी मंजिल थी, उस जगह पहुंचे तो वहां एक सराय थी, पहले सराय होती थी जहां मुसाफिर ठहरते थे, वहां एक सराय थी। आपका काफला सराय में नहीं ठहरा, एक तरफ कयाम फरमाया, और फरमाया वुजू का पानी नहीं था। सराय में खातून थी, वो कहने लगी अगर वुजू का पानी लेना है तो इतने पैसे लगेंगे और इतना माल लगेगा, और उससे बढ़ चढ़ के उसने पैसे मांगे। तो आपने ऐसे दोनों हाथ किए और अल्लाह से दुआ की, और दुआ करने के बाद ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। ये दुआ पढ़ते गए, फरमाया उसके बाद बैठ गए जैसे इंतजार फरमा रहे। थोड़ी ही देर गुजरी, 3 ऊंट आए, उन 3 ऊंटों पे मशकीजे पानी के भरे हुए थे, वो आके सामने बैठ गए। उनके साथ कोई मर्द नहीं था, औरत नहीं था, बच्चा नहीं था, लगाम हाथ में नहीं थी, वो बैठ गए। और बैठने के बाद 3 ऊंटों को उनमें से पानी था। आपने फरमाया अल्लाह की मदद आ गई है, अल्लाह की मदद आ गई है, अल्लाह की मदद आ गई है। और अपने मशकीजे वो सारे ले लिए, रख लिए अपने पास, वो ऊंट चले गए, गायब हो गए। लोग हैरान हैं। आखिरकार आपके गुलाम ने आपसे पूछा आका अगर आप ये दुआ हमें सिखा दें, चश्मे फैज से गरेक इशारा हो जाए, चश्मे फैज से गरेक इशारा हो जाए, लुत्फ हो आपका और काम हमारा हो जाए। आका अगर आप ये दुआ फरमा दें तो आपकी शफकत अता और इनायत होगी, आपकी शफकत अता और इनायत होगी। अब वो दुआ जो अता फरमाई,
محفوظ ہاتھوں نے اس کو محفوظ فرمایا، کتابوں نے ان کو لکھا، اولیاء نے ان کو آزمایا۔ اب اولیاء کی آزمائش میں اس صرف ایک آزمائش بتاتا ہوں، اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اور جس مقصد کے لیے پڑھا اور جس نعمت کے لیے پڑھا اور جس عطا کے لیے پڑھا اور جس چاہت کے لیے پڑھا اور جس مراد کے لیے مانگا، اللہ پاک جل شانہ نے اسے فوری عطا فرمایا، ورنہ اس کی نسبت عطا فرمائی، اور ورنہ چند لمحوں میں عطا فرمایا، ورنہ چند دنوں میں یا تھوڑے عرصے میں، جس میں اللہ کی طرف سے کوئی مصلحت تھی، اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا۔ جلدی یا دیر میں عطا ہوئی ہے، جلدی یا دیر میں عطا ہوئی ہے، آج تک اس دعا کے مانگے کا رد ہوا ہو ہمیں یاد نہیں، ہمیں یاد نہیں۔ کیا خیال ہے اس دعا پہ تھوڑی سی توجہ نہ ہو جائے ہیں؟ اس دعا پہ توجہ نہ ہو جائے؟ آئیں بسم اللہ کر کے اس دعا کو پہلے سنتے ہیں۔ یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ بس یہی مختصر دعا ہے۔ اس دعا کے سارے رازوں میں جو راز ہے وہ لفظ یا وہاب ہے۔ اصل میں اس دعا کو یاد کریں، ہم بیٹھ کے اس کو توجہ سے پڑھتے ہیں اور دھیان سے پڑھتے ہیں، لیکن اس کو یاد کریں، پھر اس کو دل پہ اتاریں، پھر دل کی گہرائیوں میں لے جائیں، پھر اندر کے دل کے راز و نیاز اس دعا میں شامل کر کے اس دعا کو اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں شامل کریں، پھر اللہ سے جو چاہیں منوا لیں۔ پڑھیں، یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ اب ایسا کریں، اپنے سارے دکھ، اپنی ساری تکلیفیں، اپنی سارے دل کے راز و نیاز، اپنی ساری آسیں، اپنی ساری امیدیں بیٹھ کے اپنے دل میں رکھیں۔ میرا درد، میرا غم، میری دنیا کے مسائل، میری آخرت کے مسائل، میری موت کے مسائل، میری اولاد کے مسائل، میرے گھر کے مسائل، میری زندگی کے مسائل، میری زندگی میں عزت، میری زندگی میں ترقی، میری زندگی میں رزق، میری زندگی میں دولت، میری زندگی میں صحت، میری زندگی میں مشکلات اور قرضوں کا حل، بے اولادی، ناکامی، پریشانی۔ اچھا مجھے سب کچھ مل گیا، میری ایسا نہ ہو میری نسلوں سے لٹ جائے، میری نسلوں سے لٹ جائے، میری نسلوں سے لٹ جائے، میری نسلیں فقیر ہو جائیں، فنا ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ناکام ہو جائیں اور ناکامیوں میں رل جائیں، بربادیوں میں برباد ہو جائیں۔ ان سب کا تصور کر لیا، اپنی آسیں، اپنی امیدیں، اللہ میری دنیا بہتر ہو جائے، پھر دنیا حسنتم، اللہ میری آخرت بہتر نہیں بہترین ہو جائے، اور پھر آخرت حسنتم، ان ساری چیزوں کا تصور، ان ساری چیزوں کا دھیان، ان ساری چیزوں کا استحضار کر لیا۔ اب ایسے پڑھیں گے کہ مولا اب لوح محفوظ پہ اگر ہمارے لیے لعنت لکھی ہے، شکاوت لکھی ہے، بدبختی لکھی ہے، در در کی ٹھوکریں لکھی ہیں، ذلت لکھی ہے، علت لکھی ہے، قلت لکھی ہے، بدنامی لکھی ہے، بے اولادی لکھی ہے، فقر لکھا ہے، غربت لکھی ہے، بھکاری بننا لکھا ہے، لاشوں کا سڑنا لکھا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہونا لکھا ہے، بندر بن جانا لکھا ہے، اور اے اللہ اگر ہمارے لیے یہ سب لکھا ہے تو آج اس کی برکت سے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے وسیلے سے، آل محمد کے وسیلے سے اور اس دعا کی برکت سے اللہ سب کچھ مٹا دے، دل کی مرادیں پوری کر دے، من کی آسیں پوری کر دے، اندر کی کیفیتوں کو تو جانتا ہے، تو دعاؤں کو بھی جانتا ہے، تو فریادوں کو بھی جانتا ہے، تو اس دل کی آوازوں کو بھی جانتا ہے، تو اندر کی دھڑکنوں بھی جانتا ہے، تو منہ کے بولوں کو بھی جانتا ہے۔ پڑھیں آپ ڈوب کے، یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ
इन्नका अंतल वहाब। सुभान अल्लाह। अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन 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 आमीन। कलमे के बाद जब इंसान मोमिन बनता है, ईमान लाता है और अल्लाह पाक के तौहीद और कमली वाले की रिसालत का इकरार करता है, सबसे पहले उसके साथ जो चीज और जो हुक्म उसकी तरफ मुतवज्जे होता है वो नमाज है। आखिर क्यों? नमाज ही सबसे पहला हुक्म है जो उसकी तरफ मुतवज्जे होता है, नमाज। असल बात यह है कि हमने आज तक शायद ये समझा है कि नमाज आखिरत में फायदा देगी। वाकई देगी, 100% देगी, लेकिन आखिरत से पहले दुनिया में नमाज बड़ा फायदा देगी। या बाहर हमारा जो चौक है, करतबा चौक, इसमें 6 सड़कें लगती हैं। शहर की मेन 6 रोड्स, 6 सड़कें लगती हैं। इस बाहर के चौक पे 6 सड़कें लगती हैं। यहां अगर कोई ट्रैफिक वार्डन बगैर वर्दी के खड़ा हो जाए और हाथों के इशारा करे, उसकी कोई बात नहीं मानेगा। और वही बंदा वर्दी के साथ खड़ा होके हाथ के इशारे करे तो उसके एक इशारे पे अगर सामने उससे बड़े अफसर की भी गाड़ी आ रही है, उसके जिम्मे है वो रुक जाए। एक बंदा ना हमदर्द था, बहुत ज्यादा हमदर्द था, और उसकी हमदर्दी की इंतहा देखें, 3री मंजिल में रहता था। नीचे आया एक फेरी वाला आलू प्याज शलजम इसकी आवाज लगा रहा था। 3री मंजिल से उतर के कहने लगा, भैया हमने नहीं लेना। हमदर्द बहुत ज्यादा था कि अब ये बेचारा फेरी लगाने वाला, आवाज लगाने वाला आवाज लगा रहा, और ये अगर उम्मीद रखा इसने तो कहा हमने नहीं लेना। लिहाजा उसके अंदर बहुत आला अखलाक, मोहब्बत की इंतहा थी। अब वो सुबह गया ना तो देखा ट्रैफिक वार्डन हाथ ऐसे करता है, ट्रैफिक रुक जाती है, ऐसे करता है, चल पड़ती है। शाम को आया तो फिर देखा वही खड़ा है। अब उसके अंदर हमदर्दी की तो इंतहा भी, हमदर्दी का निजाम उसके अंदर बहुत ज्यादा था। वो ट्रैफिक वार्डन के पास गया, कहने लगा, भला आदमी, तेरे बीवी है, बच्चे हैं, घर बार है? हाँ है। उसने कहा, बाबा जी खैरियत से क्यों पूछते हैं? कहा, मैं सुबह गया था, तुझे इसी तरह मैंने देखा, और शाम को इसी तरह देखा। तेरी बीवी बच्चों का खर्चा, गुजारा, जिंदगी, घर, निजाम, ये कैसे चलेगा? अब जो ट्रैफिक वार्डन ने जवाब दिया वो जरा गौर से सुनिएगा और बहुत तवज्जो से सुनिएगा। उसने जवाब दिया, उसने कहा कि सरकार ने मेरी ड्यूटी लगाई है और सरकार ने कहा है कि तेरा काम सिर्फ हाथ हिलाना है, बाकी सारा मेरे जिम्मे है, बाकी सारा अल्लाह अकबर। इसलिए मोटे की यहां से जंग खत्म हो गई। बाकी सारा किसके जिम्मे है? किसके जिम्मे? मेरे जिम्मे। और जो हार जाता है ना वो जीत जाता है, ये भी बता दूं, जो हार जाता है वही जीत जाता है। अल्लाह ने कहा है कि तेरे मेरे बंदे, तेरा काम सिर्फ हाथ हिलाना है, नमाज में अल्लाह अकबर, कयाम में, रुकू में, सजदे में, तेरा काम हाथ हिलाना है। अगला काम हमारे जिम्मे है, अगली जिम्मेदारी हमारी है। इस नमाज के जरिए तुझे रोटी देंगे, खाना देंगे, जिंदगी की तंगियां दूर करेंगे। ज़ीकुल आयश फरमाया, जिंदगी की तंगियां नमाज से दूर होती हैं। ज़ीकुल आयश, जिंदगी की तंगियां, वो रिस्क की, वो कर्जों की, वो बीमारी की, वो जिंदगी की तंगियां, वो हालात के वाकयात की तंगियां, वो दूर हो जाती हैं इस नमाज की वजह से। अल्लाह जिंदगी की तंगियां दूर करता है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु लेटे हुए थे। कमली वाले ने पूछा, अबू हुरैरा क्या है? आका बीमार हूं। फरमाया, उठ, नमाज में शिफा है। और उन्होंने नमाज पढ़ी, अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमाया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम रहमतुल्लाह अलैह अपना कॉलम लिखते थे। मैं उनका कॉलम पढ़ रहा था, एक हमारे दोस्त हैं, उनके कॉलम को अंडरलाइन करके वो मुझे देते हैं, जो मेरे मकसद की चीज होती है उनके जिम्मे लगाया। मैंने पढ़ रहा था कि मेरे एक दोस्त थे, उनको पुरानी एलर्जी थी, मोहरों के मसाइल थे,
कमर के मसाइल थे, एलर्जी का इलाज करा करा के थक गए थे और उनकी एलर्जी ठीक नहीं होती थी, कमर मोहरों के मसाइल ठीक नहीं होते थे, दिमाग कमजोर, आसाब खिंचे हुए थे। बहुत बड़े मुलाजिम, बहुत बड़े डॉक्टर और किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के मुलाजिम डॉक्टर ने उन्हें कहा, लंबा सजदा कर, लंबा सजदा कर, और अगर तू माजूर मजबूर नहीं है, ऐसा सजदा कर जिसमें हाथ पूरे हो और कमर के दरमियान में खिला हो और तेरे हाथ बगलों के साथ लगे हुए ना हो। लंबा सजदा कर, लंबा सजदा कर। जो शख्स लंबा सजदा करता है उसके बाल जल्दी सफेद नहीं होते, उनके बालों में सर्कुलेशन ब्लड की जाती है। जो लंबा सजदा करता है उसके हार्ट और दिमाग के मसाइल, याददाश्त, मेमोरी, क्योंकि जिंदगी में आजकल एक मर्ज चली है, हर चीज भूल जाना, अपना घर भूल जाना। मैंने खुद देखा कि आंखों का एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, अपना घर भूल जाता था। कहा 6-6, 7-7 गलियां फिरते रहता हूं और फिर अपना नाम लेके पूछता हूं कि जी इस डॉक्टर साहब का घर कहाँ है? डॉक्टर साहब खुद तो है। ओहो, मैं जरा घर भूल गया हूं, बता दो। आपका घर वहां है, आगे बोलता फिर भूल जाता हूं। मैं ये मर्ज बढ़ता चला जा रहा है। इस मर्ज का इलाज लंबे सजदे हैं। और आपको आज के कयाम ने, कितने खुशकिस्मत हैं वो जो पहली रमजान से और बल्कि रमजान से पहले से यहाँ आके एहतिकाफ किया, और आज पहला दिन है आखिरी अशरे के एहतिकाफ का, पहली रात है, और आप कितने खुशकिस्मत हैं। आपने इन्हें मरहबा कहा जो अभी तशरीफ लाए, उन्हें मरहबा कहा, उन्हें मरहबा कहा। जो यहाँ पुराना रहने वाले हाथ खड़ा करें, पुराने आने वाले भी, रहने वाले भी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपने वेलकम कहा, उन्हें मरहबा कहा। लंबे सजदे, यहां आके नमाज पे मेहनत करनी है। फरमाया जो बंदा नमाज की नजरों पे मेहनत करेगा, नमाज में नजरों पे मेहनत करेगा, नमाज में नजरों पे मेहनत करेगा, सजदे की जगह पे नजर कहां, कयाम की जगह पे कहां, और रुकू की जगह में कहां, अत्तहियात में गोद में, और कयाम में मेरी नजर नीचे सजदे की जगह पे। जो नजरों पे मेहनत करेगा उसे नमाज से बाहर नजरों की हिफाजत की तौफीक मिलेगी, और एक तोहफा अल्लाह जल्ल शान को देगा। और खुश हो जाना मैं जो तोहफा और जो हदिया कहने लगा हूं, जो नमाज में नजरों में मेहनत करेगा, जो नमाज के दौरान नजरों पे मेहनत करेगा, आखिरी वक्त में अल्लाह उसको शर्तिया कलमा नसीब करेगा इंशाअल्लाह। रमजान में तो इसकी मश्क है, तरावी इसकी मश्क है, सुनते इसकी मश्क है, अमाल इसकी मश्क है, जिक्र इसका मश्क है। आप तो खुशकिस्मत हैं, एतकाफ वालों खुशकिस्मत हैं। और याद रखिएगा, जहां जुमा होता हो, 5 वक्त जमात होती हो, एतकाफ होता ही वही है, होता ही वही है। बाज़ औक़ात शैतान या कोई शख्स वसवसे डालता है, वसवसे नहीं है। यहाँ बड़े बड़े उलमा, फुक़हा, मुफ्ती, उन हजरात की निगरानी में निज़ाम सारा चल रहा है। आप ये देखें कि आप अगर नमाज में नजरों पे मेहनत करेंगे तो क्या है, असल आखिरी वक्त है, सारी जिंदगी का निचोड़। बाबा फरीद फरमाते हैं, खटिया बटिया मेरी सारी जिंदगी की पूंजी, मेरी सारी जिंदगी का निचोड़, मेरी सारी जिंदगी की मेहनत, आखिरी वक्त कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज की नजरों पे मेहनत, नमाज के क़याम पे मेहनत। मौका है, आखिरी अशरा है, रमजान है, तस्बीह खाने का क़याम है। रमजान में नमाजी बढ़ जाते हैं। रमजान में नवाफिल यहाँ आके नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, चाश्त यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, अवाबीन यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, इशराक तहज्जुद यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, सलातुल हाजत यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे। फिर नमाज के रुकू में मेहनत। यूं कहा, जो नमाज के रुकू में सही झुकता है, अल्लाह उसको कमर के दर्द, मोहरों के दर्द, गर्दन की तकलीफ से दूर कर देते हैं। और फिर फरमाया, जो झुकता है ऐसे है जैसे उसने काबे के अंदर से सफाई की है।
اور فرمایا جو بندہ سجدے میں جاتا ہے اللہ اس کے جسم کے بقدر سونا خرچ کرنے کا، ہدیہ کرنے کا، صدقہ کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ جو سجدے میں جاتا ہے موٹے کو زیادہ ملے گا، ہاں سجدے میں وزن زیادہ ہے نا، اب وہ موٹے جو بندے ہیں ان کو تو زیادہ ملے گا۔ نماز کی محنت کرنی ہے، تسبیح خانے میں اللہ نے بلایا ہے، رمضان کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ میرے اللہ سے کہے مولا میرا کام صرف ہاتھ ہلانا ہے اور ہلاؤں گا تیرے امر کے مطابق، سوچ سمجھ کے۔ ایسا ہی آقا ایک سارجنٹ کو یہ یقین ہے کہ میری سرکار نے، میری گورنمنٹ نے، میرے نظام نے تو مجھے یہ کہا ہے کہ تو ہاتھ ہلائے جا اور باقی ہمارے ذمے ہے۔ اے اللہ میرا کام صرف ہاتھ ہلانا ہے، تو کریم ہے میرے کام بنا دے۔ اور رب کعبہ کی قسم نماز سے کام بنتے ہیں، نماز سے مسئلے حل ہوتے ہیں، نماز سے مشکلیں دور ہوتی ہیں۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، گدھا مر گیا حج کو، اب کیا کریں؟ سفر والوں نے کہا سامان بانٹ لیتے ہیں، کہا نہیں تو میں اس کو نماز کے ذریعے زندہ کراؤں گا۔ کہا کیا بات کرتا ہے؟ کہا میرا رب قیامت کے دن اس کو زندہ کرے گا؟ کہا ہاں کرے گا۔ تو فرمایا میں اس کو نماز کے ذریعے زندہ کراؤں گا، نماز کے ذریعے زندہ کراؤں گا۔ اب نماز پڑھی خشوع خضوع دھیان سے، اور پھر پڑھی اور پھر اللہ سے عرض کیا مولا مسافر پردیشی ہوں، تو شہنشاہ کریم ہے جو گڑ گڑا کے دعا مانگی۔ یاد رکھیے گا تسبیح خانے میں ایک مشق کرنی ہے آخری عشرے میں، مجھ سے وعدہ کریں میں آپ سے وعدہ کروں گا کہ میں بھی کروں گا، ہم سارے محتاج طالب علم ہیں، تسبیح خانے میں ایک مشق کرنی ہے۔ یہاں دعائیں مانگنی نہیں ہے، یہاں دعائیں پڑھنی نہیں ہے، یہاں دعائیں مانگنی ہے، اور پڑھنے اور مانگنے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ ذرا اگر مانگنا سیکھنا چاہتے ہو، جو چوراہوں پہ کھڑے سائل ہیں، بھکاری ہیں، ان کی آنکھیں سائل منگتی، ان کے پاؤں لباس منگتے، ان کے جسم منگتے، ان کے بول منگتے، ان کے کشکول منگتے، ان کے ہاتھ منگتے، ان کے کپڑے منگتے، ان کی چال ڈھال کال منگتے، اللہ سے ایسے ہی مانگنا سیکھنا ہے۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم تو دعائیں مانگتے نہیں ہیں۔ اب جو دعا مانگی گدھا کانوں کو جھٹکتا ہوا کھڑا ہو گیا، سفر کیا، جاگ رہے دیکھ رہے مجھے، سفر کیا اور مر گئے۔ پھر وہ گدھا کئی جگہ بکا، اتنی لمبی عمر تھی، جب بھی بکتا تھا لوگوں کو بولی دیتے ہوئے کہا جاتا تھا لوگوں یہ وہ گدھا ہے جو ابو مسلم خولانی اللہ کے ولی کا گدھا تھا، جو مر کے زندہ ہوا ہے، اس کی قیمت زیادہ لی جا رہی ہے۔ لوگ لے لیتے تھے، وہ بھی ہٹاتے تھے، اپنی زندگی مر جاتے تھے، گدھا پھر آگے بک جاتا تھا۔ ہم نے وہ نماز بنانی ہے، اس نماز پہ مشق کرنی ہے۔ سارجنٹ کو پتہ ہے ہاتھ ہلانے سے میرے کام بنے گے۔ جو نماز، آج ایک لفظ کہہ رہا ہوں سدا یاد رکھیے گا، اور دن میں 3 دفعہ اپنے من سے پوچھنی ہے آج کے یہ بات۔ پوری دنیا کی جہاں میری آواز جاری ان سے بھی، میں بھی اپنے من سے 3 دفعہ پوچھنا ہے، اور یہ 40 دن یہ عمل کرنا ہے جو آج عمل بتا رہا ہوں، اور 40 دن کے بعد حسب توفیق کچھ پیسے ایسے ضرورت مند کو دینے ہیں جو منگتا پیشہ ور نہ ہو۔ یہ ایک سوال پوچھنا ہے اپنے سے، اور دن میں 3 دفعہ پوچھنا ہے، کسی بھی وقت وقفے سے پوچھ لیں۔ وہ سوال کیا پوچھنا ہے وہ ذرا سن لیں، درود پاک پڑھیں۔ وہ سوال یہ پوچھنا ہے اے دل تو یہ بتا، جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا یقین کیسے کر لیا ہے؟ اے دل تو بتا، جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا یقین کیسے کر لیا؟ اے دل تو بتا، جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا کیسے یقین کر لیا؟ تو کہتے ہیں میں نماز پڑھوں گا 2 روٹی نہیں ملے گی، کیسے نہیں ملے گی؟ نماز سے کام کیسے نہیں بنیں گے؟ ملا جیون رحمت اللہ علیہ، آج بھی اندرون شہر میں ان کی مسجد ملا جیون کی مسجد ہے، اندرون شہر میں بھاٹی میں آج بھی ہے ملا جیون۔ بادشاہ ہمیشہ جمعہ نماز پڑھاتا تھا یا پڑھتا تھا مجمع میں، بادشاہ نے ریشم پہنا ہوا تھا، ملا جیون نے فتویٰ دیا کہ مرد کے لیے ریشم حرام ہے، اور پورے مجمع رعایا بیٹھی تھی، بادشاہ نے توہین محسوس کی، جا کے کہا ملا جیون کو گرفتار کرو۔ بیٹے تھے شاگرد، بھاگے استاد کے پاس اور کہنے لگے ابا جی
نے آپ کی गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। अच्छा, लोटा लाओ, मुसल्ला लाओ। लोटा मुसल्ला दे के अब्बे के पास भागे। अब्बा उस्ताद को लोटा लेके आए हैं। अब्बा नंगे पांव भागा। अब्बे को पता था कि मुल्ला जीवन की नमाज ने फैसले करवा देने हैं, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरा कख नहीं रहेगा। अभी मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले पे नहीं चढ़े थे, पांव पड़ गए अल्लाह के वास्ते। मेरी कोई गिरफ्तारी नहीं, मैं आपका गुलाम हूं, आपने जो कहा हक कहा है, मैं अपनी इस्लाह करूंगा। 10 अशरे में, आखिरी अशरे में, 10 दिनों में ये नमाज बना के जानी है। कहें इंशाअल्लाह, ख्वातीन और मर्द और पूरी दुनिया में जहां इस फकीर की आवाज, ये नमाज बना के जानी है। इस नमाज की ताकत, हाय हाय, जब हिजरत की और अल्लाह की बंदी भी थी, उनका छोटा सा बच्चा फौत हो गया। और जब बच्चा फौत हो गया, सहाबा ने चुप करके ना उसको कफन दिया, उसकी तजहीज़ और तकफीन की, और माँ को आखिर में बताया। माँ का दिल है कि आपका बच्चा फौत हो गया, अब इसकी तदफीन है। कहाँ, क्यों दफन करोगे? मुझे मुशरिकीन मक्का ताना देंगे। अच्छा, गई थी, तेरा बच्चा ही मरवा बैठी, उस मोहम्मद का और साथ दे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नाउज़ुबिल्लाह, और साथ दे। ठहरो, मुझे मोहम्मद ने बताया है, मेरे कमली वाले ने बताया है, नमाज है, मैं इस नमाज के जरिए इस बच्चे को जिंदा करवाऊंगी। ऐसी नमाज पढ़ी और ऐसा मांगा अल्लाह से। सहाबा कराते हैं, असर के वक्त तो बच्चा हमारे साथ बैठा खाना खा रहा था। इस नमाज पे मेहनत करनी है, नमाज के क़ियाम पे मेहनत करनी है, नमाज के रुकू पे मेहनत करनी है, नमाज के सजदों में मेहनत करनी है। अल्लाह, अब तक ये समझा कि नमाज से जन्नत मिलेगी, 100% मिलेगी। जन्नत से पहले भी जन्नत बनेगी दुनिया, जन्नत से पहले भी दुनिया जन्नत बनेगी, और दुनिया खैर बनेगी, और दुनिया राहत बनेगी, और दुनिया रहमत बनेगी, और दुनिया बरकत बनेगी, और मेरे काम बनेंगे, और मेरी मुश्किलें टलेंगी, और मेरे मसाइल हल होंगे। इस नमाज की वजह से, इन तरावियों के सजदों की वजह से, इस 2 नफल हाजत की वजह से, इस इशराक चाश की वजह से, इन सुन्नतों की वजह से, इन सजदों रुकू की वजह से मेरे काम बनेंगे। अब तक के पिछलों के काम बने हैं, मेरे क्यों नहीं बन सके? मुझे मांगना नहीं आया, मुझे मनवाना नहीं आया, मुझे लेना नहीं आया। आज तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया, तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया, तूने मुझे ये गम दे दिया। तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया, तूने मुझे सलीका दे दिया। तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब। तेरे आशिकों से सीखा, तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया, तूने गम दिया है, तूने जिंदगी में जीना मरना सिखाया है, तूने जिंदगी का सलीका दिया है। तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया। बुलाता भी है, मिन्नतें करके खिलाता भी है। हर जगह आखिरी अशरे के लिए फीसें हैं, पैसे हैं, आखिरी अशरे के लिए पैसे जमा कराने पड़ते हैं। अल्लाह का फजल है। याद रखिएगा, जो आज भी रिस्क आपने अपना मुकद्दर खाया, मेरा नहीं, आपने अपना मुकद्दर खाया है, जो रिस्क आइंदा खाएंगे, ना सदका, ना खैरात, ना ज़कात, ना उशर है। क्यों? आप में बेशुमार मालदार हैं, मालदारों को तो सदका लगता ही नहीं है, मालदार तो खुद सदका देते हैं। इस नमाज पे मेहनत करें, रुकू, सजदे, क़याम पे मेहनत करें। और एक और अजब मैं आपको राज बताऊं, फरमाया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे, वो हमेशा अपने शहर में एतकाफ नहीं करते थे। कई सालों के बाद किसी ने पूछा, हजरत आप एतकाफ के लिए दूर जाते हैं? फरमाया, जहां मैं देखता हूं 10 का मजमा ना हो, 20 का ना हो, सैकड़ों का मजमा हो, मैं वहां जाता हूं। 10 लोगों का मजमा ना हो, 20 लोगों का मजमा ना हो, जहां सैकड़ों का मजमा हो, मैं वहां जाता हूं, और वहां जाके एतकाफ करता हूं, और वहां जाके नमाज, तस्बीह, जिक्र और वहां की महफिलों में शामिल होता हूं। पूछा, हजरत क्यों? फरमाया, कोई खिज़र हो, कोई वली हो उस मजमे में, कोई गौस हो, कोई कुतुब हो, मेरी नजरों में तो वो आम आदमी है, रब करीम की नजरों में वो पहुंचा हुआ है। बस उसकी एक नजर लग गई, या जूठा खा लिया, या उसका बचा हुआ खा लिया, या उसका साया पड़ गया, या उसके करीब से गुजर गया, या उसके पीछे नमाज पढ़ ली, या उसने मेरे पीछे नमाज पढ़ ली, या दाएं बाएं, बस मैं रंगा गया। हत्ता कि यहां तक फरमाया, वो वुजू करके उठा था, उसकी वुजू की जगह पे मैंने वुजू कर लिया, तो भी मैं रंगा गया।
मैं आबाद और शाद हो गया, मेरे काम बन गए, मेरे मसले हल हो गए, मेरी मुश्किलें दूर हो गई। जब से मैंने अर्ज किया है बचा हुआ रोटियां खाना शुरू हो गए हैं, टुकड़े बचना खत्म हो गए हैं। बचा हुआ खाना, याद रखिएगा मोमिन के बचे हुए में शिफा है। मैं कितने लोग मुझे कहने लगे हम तस्बीह खाने में आए, दुनिया की आखिरी बीमारियां लेके आए। किसी ने हमें कहा जा तस्बीह खाने में, वहां जाके बिस्तर डाल दे, पर फकीर बन के रहना, अमीर बन के, चौधरी बन के, मलिक बन के, खान बन के, रईस बन के ना रहना। कहा मैं फकीर बन के रहा, क्यों? तेरे दर के जो भी फकीर हैं वही दो जहां के अमीर हैं, उन्हें बादशाहों से क्या गरज जो गदाहे शाहे जहान है। कहा उसने मुझे कहा अगर अपनी बीमारियों और कैंसर से लेकर छोटी बीमारियों को खत्म करना चाहता है, वहां का बचा पानी पी, वहां की बची रोटी खा, वहां का बचा सालन खा, और टुकड़े ले और टुकड़े खा, और रोटी साबित बिल्कुल ना खा, टुकड़े ढूंढ ढूंढ के खा। कहा कि मैं सेहत याब होके जा रहा हूं, क्यों? मेरे आका ने फरमाया है मुसलमान मोमिन के बचे जूठे में शिफा है। रोजेदार से बड़ा मोमिन कौन होगा? जो हिजरत करके आए उससे बड़ा मोमिन कौन होगा? रात मैंने एक बात कही है, आज सुबह वो दोहराता हूं, गौर से सुनिएगा। फरमाया जो चाहता है कि औलिया की सोहबत में जाऊं और वलियों की सोहबत में जाऊं, जब किताबों का रिवाज बढ़ जाएगा और सोहबत का रिवाज खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितने सहाबा बने हैं ये कमली वाले की सोहबत की वजह से सहाबा बने। भाई देखो ये टेक लगाने वाले बड़े खतरे में हैं, इनका नुकसान हो रहा है ऊंघ की वजह से। टेक लगाने वाले बड़े खतरे में हैं, इनका नुकसान हो रहा है ऊंघ की वजह से। बड़े कीमती लोग हैं ये सहाबी जो बने हैं, और सहाबा के बाद जितने बड़े बड़े औलिया आए। 40 साल एक ही वुजू से इशा और फजर पढ़ी, 40 साल रात का कयाम, 40 साल दिन का रोजा रखा। क्या कोई बंदा कायनात का उनको सहाबी कह सकता है? बोलो कह सकता है? बोलो। इसलिए कि उन्होंने कमली वाली की सोहबत नहीं पाई। आज किताबों को सब कुछ समझा जाता है, ये सोहबत का कुछ नहीं समझा जाता। एक चीज ये है, फरमाया औलिया की सोहबत में जाओ, औलिया की सोहबत में जाओ। कोई खड़ा होके कहे ये तस्बीह खाने में बैठे हुए सारे औलिया हैं, आप क्या बात कह रहे हैं? आओ फिर मैं एक चीज बताता हूं, एक मोती देता हूं। फरमाया जहां 11 आदमी जमा हो जाएं और जिनका मतलूब सिर्फ एक अल्लाह हो। क्या हो? आप किस लिए आए हैं यहाँ? आपका मतलब क्या है? आपका मकसूद क्या है? आपकी मंजिल क्या है? आपकी तलाश क्या है? जिनका मतलूब सिर्फ अल्लाह हो। 11 आदमी अगर जमा हो जाएं, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, खवातीन भी मर्द भी, 11 आदमी अगर जमा हो जाएं और जिनका मतलूब अल्लाह हो। अब अगली खुशखबरी सुने और दिल आपके बाग बाग हो जाए। फरमाया वो 11 आदमी एक अल्लाह के वली की जगह पे होते हैं। ऐसे है जैसे एक अल्लाह का वली है, और ऐसे है जैसे एक अल्लाह वली की सोहबत में है। और वो 11 आदमी एक अल्लाह के वली जितनी किफायत करते हैं और एक अल्लाह के वली जितनी सोहबत देते हैं, और ऐसे है जैसे एक अल्लाह के वली की सोहबत में है। यहां तो बेशुमार 11 लोग बैठे हुए हैं। 11 लोग जमा हो जाएं जिनका मतलूब सिर्फ क्या हो? अल्लाह हो। वो एक अल्लाह के वली का बदल होते हैं। बस खत्म। ये चलो ये सादा लफ्ज याद रख ले, वो एक अल्लाह के वली का बदल होते हैं। फरमाए जा अल्लाह के वलियों की सोहबत में बैठ। और फिर मुझे कई लोगों ने बताया इस मजमे के वसीले से जब भी हमने गिड़गिड़ा के दुआ की है, मौला कोई दुखियारा, कोई गम का मारा, कोई आहों और सिसकियों का मारा, कोई तौबा करने वाला और पाक हो जाने वाला, कोई तुझे मनाने वाला, किस जेब में गुर्बत है, तंगदस्ती है, घर जाऊंगा रोटी नहीं यहाँ रोटी मिल रही, कोई कर्जे कोई गम, जो इस मजमे के वसीले से दुआ करता है, मुझे बेशुमार वाकयात मिले हैं, रब ने उसकी दुआ कबूल की है, उसके मसले हल किए हैं, उसकी मंजिलें मुरादें उसको मिली हैं। आप कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आपको इस मजमे के लिए चुन लिया है। आखिरी अशरे के लिए कहें अल्हम्दुलिल्लाह, कहें अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र, कहें अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मुझे बेशुमार लोगों ने कहा कि मुख्तलिफ जगहों पे क़याम करते थे, ना दिन को कोई सिखाने वाला होता था, ना कोई पूछने वाला होता था, मोबाइल और गपशप करके इत्तिकाफ करके आ जाते थे। जब से तस्बीह खाने आए हैं पता चला है कि माँ बाप से बढ़ के यहाँ मोहब्बत दी जाती है, माँ बाप से बढ़ के यहाँ शफकत दी जाती है, और माँ बाप से बढ़ के यहाँ एहसास और एहतराम किया जाता है। पर हम एहतराम लेने के लिए नहीं आए, हम फकीर बन के आए हैं। जो फकीर है वही ताज सजा के जाता है, जो ओहदा और मकाम लेके आता है। मेरा अल्लाह कहता है जा खाली करके तुझे भेज दिया। हम फकीरों को संभालते हैं, यकीन से कह रहा हूं। आप नमाज को, और एक अमल बताता हूं जो नमाज के दौरान नहीं छोड़ना, मैं बताता रहता हूं। जो बंदा रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द के बाद हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी पढ़े, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये 5 बोल जो पढ़ेगा कभी घुटनों का मर्ज, कमर का मर्ज, पट्टों का मर्ज, गर्दन का खिंचाव, जिस्म की कमजोरी, लूला लंगड़ापन, कभी अपाहज, बिस्तरे बंजे और बंदे का मोहताज, अल्लाह उसको नहीं बनाएगा, इंशाअल्लाह नहीं बनाएगा। मैंने जब से यह बताना शुरू किया है मुझे शुमार लोग कहा कि हमने गोलियां भी छोड़ दी हैं, दवाएं भी छोड़ दी हैं, और हमने ये लफ्ज पढ़ा है। इस लफ्ज का एहतमाम, इस वजीफे का एहतमाम कीजिएगा। रुकू, आपको तस्बीह खाने में रुकू का मौका ज्यादा मिलेगा, नफिल की वजह से, नमाज की वजह से, तरावी की वजह से और मुख्तलिफ मामूलात की वजह से रुकू का मौका ज्यादा मिलेगा। याद नहीं है तो इसको याद कर लें। आए मेरे साथ मिल के पढ़े, हम्दन कसीरन तय्यबन। Like this video, comment and share as Sadaqah Jariyah. Jazakallah.